Yes, hello Saurabh. Welcome on YourPedia platform. And Thank you, let's sir. start your full mock for your HPCL interview. Yes, sir. So me and Vikram sir, we will both go for your full mock. So before going to proceed with your mock, please introduce yourself briefly to us. Thank you, sir. My name is Saurabh Gupta. I belong to Mandsaur, Madhya Pradesh. I done my schooling from Government School of Excellence, Mandsaur, Madhya Pradesh. Then after I joined the Institute of Engineering and Science, IPS Academy, Indore, to pursue my graduation in civil engineering. Where I got a full tuition fees over scholarship from AICTE. My project during my graduation was about stabilization of soil using a waste material which was shredded tire rubber. I was always keen to work for an organization like PSUs, where I can utilize my own learnings and my potential for the growth of the organization and also for the development of the society and my country. My hobbies include, sir, I like to guide people to adopt e-commerce and e-commerce website, and I am also an ex-cadet NCC Air Force. I have passed all A, B, and C certificate examinations of NCC. I have experience of flying Zenith Stall CS70H 701 microlight aircraft as a co-pilot with my commanding officer. That's all about me. Saurabh, what is famous about Mandsaur? Sir, Mandsaur is famous for mainly two things. Temple of Lord Pashupatinath, क्योंकि जो आइडल है पशुपतिनाथ का सेम एक आइडल नेपाल में ओनली, इसके अलावा कहीं नहीं है वर्ल्ड में. और सेकंड थिंग, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन वर्ल्ड, सर. लीगल प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन वर्ल्ड, सर. You mentioned about e-commerce. Yes, Is sir. exploring, that particular thing is your hobby. So what is that E? What is E in that e-commerce? Electronics, sir. Electronics. Electronics Yes. commerce. That is Yes, sir. electronics commerce. Using electronic devices and yes, sir. So any particular platform you explore or different, can you Yes, sir. can you tell us some of the e-commerce website which generally most of the people utilize for purchasing? Myntra for shopping of clothes, Amazon and Flipkart for everything like electronic devices and Any cloth Indian shopping, venture? fashion. Any Indian venture? Tata CIL, sir. So they are having their e-commerce website? Sir, they are having, but as their policy and customer relationship are not that much good, so Amazon and Flipkart का So ज़्यादा what यहाँ you पे can suggest them? वर्चस्व है. What you can suggest? सर, सबसे पहले इनको अपना कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना चाहिए. दूसरा, डिलीवरी एक्सपीरियंस कस्टमर्स का इंप्रूव करना चाहिए. थर्ड थिंग जब आती है कि अगर कस्टमर्स को बिलीव है तो कस्टमर वेबसाइट पे जाएगा, और कस्टमर अगर वेबसाइट पे जाता है तब उन्हें आगे सोचना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं, हम कस्टमर्स को क्या ऑफर दे सकते हैं. बट सबसे पहले अगर कस्टमर को ले जाना है. Yes. Suppose you are working in HPCL and your officer there, and suppose they assign you some project. So in a particular reason, for example, the customer or the further vendors, they are not satisfied with some issues, they are not satisfied with some quality issues, or there may be other issues. So how you will satisfy them, how you will try to convince them about the quality of HPCL products? सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि हमें प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है. उसके बाद मैं ये देखूंगा कि उन्हें क्या मार्केट में ज्यादा बेटर कोई कॉम्पिटिटिव मिल रहा है, जो प्रोडक्ट है जो कॉम्पिटिटिव है, तो वो उसमें क्या मिल रहा है उन्हें जो हम HPCL के प्रोडक्ट में नहीं दे पा रहे हैं. दो चीज ये होने के बाद सर मैं उस पर वर्क करूंगा कि मैं उनको क्या क्या बेटर क्वालिटीज दे सकता हूँ, उन्हें एश्योरेंस दूंगा. हम अपना HPCL का, जैसे कि हमारा विश्वास है, इतने सालों का भरोसा है, हम अपना गोल विजन उनको बताएंगे और हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे सर उसके बाद. बट सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स क्या है. You are aware about some of the products of HPCL? यस सर, बताओ. आई यूज सम ऑफ देम. सर, जैसे कि पेट्रोल डलवाता हूँ मैं अपनी बाइक में. और सेकेंड थिंग, ल्यूब्रिकेट जो ऑयल होता है, ल्यूब्रिकेंट इंजन ऑयल, वो मैं अपनी बाइक में डलवाता हूँ HP का. कुछ HPCL सिलेंडर, LPG सिलेंडर, और
रिफाइनरीज HPCL रिफाइनरी में भी है। अभी लेटेस्ट ड्यूरापोल पेट्रोकेमिकल भी लॉन्च किया है। HP ने अपना स्टोर भी लॉन्च कर दिया है हैप्पी शॉप्स के नाम से, जहाँ पर अब जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहाँ पे होंगे वो इसके लिए भी। So which particular grade of lubricating oil we use in bikes? सर जनरली 10 to 30, 10W30 and 20W40. 10W30 when there is a extreme cold reason, and 20W40 is for a hot reason, sir. So you Or we understand can what is that think W? What is differences. that W? Sir, I don't know, but it is like viscosity. It tells the viscosity and temperature also. मतलब, yes, sir. Fine. Okay. So, sort of why actually HPCL? There are so many PSUs. You mentioned, sir, I'm having interest in PSUs. So why especially HPCL? सर मुझे जैसा वर्क करना है, मैं जैसा अपना जो प्रोफाइल चाहता हूँ उसके लिए मुझे बाकी PSU भी मिल रहे हैं। मैंने गेट की प्रिपरेशन भी की थी, बट सर अभी जो मेरे पास ऑप्शन है, अभी जो मुझे चांस मिला है सर, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है HPCL में आने की, तो मैं HPCL में। सर सेकंड थिंग HPCL के बारे में ये अच्छा है बाकी PSU से कि इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने के बावजूद HPCL कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और कस्टमर्स बेस भी अच्छा है, और आगे वो डाइवर्सिफाइड भी कर रहे हैं। और सर थर्ड थिंग ये है कि मैं सोशल और मतलब सोसाइटी और कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, तो HPCL के वो प्रोग्राम भी जैसे कि कस्टमर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। काफी सारी स्कीम्स है बच्चों के लिए, पेशेंट्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज है, टीचिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए, और नेशन बिल्डिंग में सर जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गई सरकार की, उसमें हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हमारा नेट जीरो कार्बन का हमारा टारगेट है उसके लिए वर्क करता है HPCL, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटीज स्टार्ट कर रहा है। Acha, sort of suppose if you will forget about at this moment about the attraction of a particular brand, HP, IOCL, or any other Reliance or any other brand oil. So, and most of the time we don't look for that. So, what do you feel? Suppose you know there are two type of diesel fuel available in the market. For example, one is having a density 845, another one is having density 855. So, which one you will purchase and why? सर अगर मैं सबसे पहले इसमें दो चीज कंसिडर करना होगी कि जो विस्कोसिटी है हमारे उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी और विस्कोसिटी में रिलेशनशिप होता है। तो सर अगर यस सर, अगर अगर कोल्डर रीजन में अगर मैं हूँ तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कम डेंसिटी वाला ऑयल यूज करूं No, और I'm not जिसकी talking about विस्कोसिटी कम हो। lubricating oil. I'm यस talking about यस fuel. सर, Fuel. I'm talking यस सर, about fuel. Sort of अच्छा ठीक। diesel fuel, सर diesel or petrol. डीजल और पेट्रोल। Petrol density is lower, but diesel density lies in that range only, 825, 840, something like that. यस सर, यस सर। So especially fuel, all factors like the cost, the quantity is same. सर पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल जब टेम्परेचर डाउन होता है तो पेट्रोल की विस्कोसिटी इतनी कम नहीं होती है, बट सर जो डीजल है उसकी विस्कोसिटी काफी कम हो जाती है। इस वजह से सर हम यूजुअली पेट्रोल कार्स को ज्यादा प्रीफर किया जाता है डीजल कार के। और सर सेकेंड चीज अगर मैं इन्वायरमेंट को देखूं तो डीजल जो है, डीजल का जो कंप्रेशन रेशियो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लाइक ये सब चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म उससे होता है। तो मैं प्रेफर करूंगा पेट्रोल उसकी वजह। Mm-hmm. Okay. Actually, I asked you about a particular fuel only, diesel fuel only. Diesel fuel is available in two different petrol pumps. Okay. हाँ सर। One is offering density 845, another one is offering density 855. Which one you will purchase? That was my question. I cannot Density is tell a the kind of exact answer for quality this. parameter, property parameter which you can observe. If you are going for purchasing petrol or diesel, you will find rate there, you will find the density there, quantity there. Okay, these three things are mandatory, na? And those will be there. City number, octane number, those will not be there. But if you will ask them, they will provide you the information. Return number, yes sir. But density is there if you go to any petrol pump. So, what is the significance of that? No sir, I don't have idea.
about this. Okay, Saurabh, my last question is to you. What strengths you carry which makes you suitable for this position in HPCL? Yes sir. सर फर्स्ट थिंग मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, जैसा मुझे लगता है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ। सेकंड थिंग सर मैं वेल डिसिप्लिन्ड है। थर्ड थिंग सर मैं एडॉप्टिव इन एनी सिचुएशन, मैं हमेशा कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ। और सर यस सर दैट्स। So in last 5-6 months, what new things you learned? यस सर, मैंने काफी टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा है, जो नए नए टाइप की टेक्नोलॉजीज आ रही है, लाइक मोबाइल फोन में क्या टेक्नोलॉजीज आती है। जैसे कि अगर मैं इस टाइप से सीखने की कोशिश करता, अगर कोई भी मेरे सामने प्रॉब्लम आई, जैसे कि कोई मुझसे कोई हेल्प मांगता है, तो मैं सर उसकी हेल्प करने से पहले उस चीज को पूरा सीखने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे कि किसी ने बोला है कि मुझे फोन चाहिए, तो मुझे कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, तो सर मैंने उसमें देखा है कि मुझे स्नैपड्रैगन की तरफ जाना चाहिए। उसमें भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, 5G की तरफ जाना चाहिए, 4G की तरफ जाना चाहिए। तो सर मैं इन सब में डिफरेंशिएट करता हूँ, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखने की कोशिश करता हूँ सर। Right. Any significant weakness, Saurabh, which can affect your performance in HPCL? HPCL मतलब डायरेक्ट मैं कोरिलेट नहीं कर सकता, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं किसी को अगर कोई मुझसे हेल्प मांगता है तो मैं काफी डिफिकल्ट फील करता हूँ उसको नो बोलने में। और एक और सेकंड थिंग मेरी जो वीकनेस है, जो हमेशा रही है, कि मेरी स्लो एंड बैड है इंग्लिश हैंड राइटिंग। उसकी वजह से मैंने काफी सफर किया है, बट सर मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ। Fine. And what's your long-term and short-term goal? Sir, my short-term goal is to achieve my target to get the work like PSU, and my long-term goal is to uh, my long-term goal है कि मैं काफी बड़े प्रोजेक्ट्स को लाइक HPCL में इंडिविजुअली हैंडल कर रहा हूँ, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और सर मैं साथ साथ अपनी देश और कंट्री और सोसाइटी के लिए भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ सर। ठीक है सौरभ, अभी विक्रम सर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू, एट लास्ट वी विल प्रोवाइड यू द फीडबैक। ओवर टू विक्रम सर। So yes, Saurav. Yes sir. So what was your project? Sir, it was about stabilization of soil using a waste, हमने एक वेस्ट मटेरियल को यूज किया था, श्रेडेड टायर रबर को सर। Okay, stabilization of soil using श्रेडेड टायर रबर। shaded tire rubber. So what you did in that project? सर सबसे पहले जो हमने किया था, मेजरली हमने सोइल का सैंपल लिया अपने जो हमारा कॉलेज था उसके पीछे जो फार्म थे, वहां से हमने सोइल का सैंपल लिया था। उसके बाद हमने उस पर टेस्ट किए थे, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, लाइक जो इंडेक्स प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना थी। उससे सबसे पहले हमें सोइल का टाइप आइडेंटिफाई करना था, तो हमने सीव एनालिसिस किया था, सोइल आइडेंटिफाई करी थी। उसके बाद हमने उसके ऊपर अटरबर लिमिट्स निकाली थी। सौरभ, हेलो, ये जो आप सीव एनालिसिस किए, तो सीव के लिए Yes, कौन sir. सा कोड होता है? सीव एनालिसिस के लिए सर आई नो बट आई कैन नॉट रिकॉल दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट सर व्हाट यू इट डिड? इज शायद ये 1498 होता है, IS 1498। IS 1498, that is code of practice for the soil classification. This is not for the यस sieves. सर। ये soil classification का कोड है। यस सर। ठीक है, फिर क्या किया आपने? You did the सर sieve एनालिसिस analysis. कर, यस सर, सीव एनालिसिस किया। उसके बाद हमने जो सैंपल था उसका वाटर कंटेंट चेक किया। उसके बाद हमने उसमें What सारी method you अटरवर्क prefer लिमिट for the फाइंड करी। water content? सर ओवन मेथड सर। Okay, oven drying method. यस सर। So जहाँ से आपने सैंपल लिया और जहाँ पे यस आपका सर। ये लैब प्रेजेंट था जिसमें आपने ओवन ड्राइंग मेथड परफॉर्म किया सॉइल के ऊपर, ये यस सर। कितना फार अवे था? सर ये जस्ट कॉलेज के पीछे फार्म में, तो 100 मीटर्स की डिस्टेंस होगी सर मैक्सिमम। ठीक है, ओके डन। जब हम ओवन ड्राइंग मेथड करते हैं तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर रेंज होता है
जनरली Yes, 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस, व्हाई नॉट अबव Yes, दिस वैल्यू? सर 110 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के ऊपर क्या होता है कि जो सोइल का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और उससे सोइल वाटर लूज हो जाता है। तो वो एक एक्स्ट्रा हो गया जो वाटर कंटेंट हमें नहीं चाहिए होता। हम जिन वाटर कंटेंट को कंसिडर करते हैं यूजुअली वो अलग वाटर कंटेंट होते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर और वाटर को कंसिडर नहीं करते। तो जब हम ओवन ड्राइंग कर रहे होते हैं तो कौन कौन से वाटर यहाँ पे इवेपोरेट होते हैं सॉइल मास में से? सर फर्स्ट इज फ्री वाटर विच इज ग्रेविटी वाटर एब्जॉर्ब बाय, एंड सेकेंड इज फिल्म वाटर एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। यस। ओके, हैव यू एवर सीन कि अगर हम सॉइल को 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट अप करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? नहीं सर, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट शायद कलर चेंजेस होते हैं कुछ, जैसा कि मैंने पाया है कि अगर हमने बहुत ज्यादा उसको हीट कर दिया तो कुछ कलर चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर। और यस सर। कोई और प्रैक्टिकली आपने कभी चीज देखी हो जिसमें हम सॉइल को 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे जाके हीट कर रहे हैं और सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है नहीं सर, नहीं रियल देखा सेंस सर। के अंदर? ओके सौरभ, आपने ब्रिक्स नहीं देखी है? ये सब ब्रिक्स देखिए। तो ब्रिक्स कितने ठीक है सर। टेम्परेचर के ऊपर हीट हो रही होती है? ब्रिक्स का सर 800 टू 14 डिग्री 100 सेल्सियस के आसपास होता है सर। चलिए मान लिया 1200 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू कैन सी वेयर यस। 110 डिग्री सेल्सियस एंड वेयर 1200 डिग्री सेल्सियस. Now just see bricks. What are the bricks? They are made from the earth, soil, यस सर। clay अर्थ that सर, we क्ले have. क्ले यस सर। So now you can see the changes in the brick. बट Okay, सर okay. So यस सर। यस। yes, go ahead. सर वही मैंने सब कलर चेंजेस देखा है, मतलब जहां तक मैं मेरा एक्सपीरियंस था, इसके अलावा मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाया कि क्या चेंजेस हो। See the bricks now. What changes we have in case of brick? Earlier we have this clay soil. We are mixing it with water. We are molding it. After that we are putting it in the kiln or clamps. यस A सर। huge number of changes are there. Okay, so what you did after calculating the water content? सर उसके बाद हमने अटरबर्ग लिमिट्स फाइंड करी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड किया हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली सॉइल की। Okay, just let me know, Saurav. Liquid limit, plastic limit आपने जो निकाला, what type of यस soil सर। sample you have done? सर हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल था सर। Fine grain soil. How you come to know this is fine grain soil? सर बिकॉज मोर देन 60% particles were fine, or less than 75 micron. Okay. And what about the rest 40%? Sir, it was fine sand, sir. Most probably fine sand, and around for 10% was more than 2 mm particles, sir. Okay, fine. What is the meaning of this plasticity index, PI? Sir, plasticity index हमें शो करता है कि plasticity index is a difference between liquid limit and plastic limit. सर ये हमें डिफरेंशिएट बताता है कि प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में हमें कितना कितना टाइम मिलता है या फिर कितना वाटर कंटेंट मिलता है सॉइल को रिमोल्ड करने के लिए। उसके बाद सेकंड थिंग सर ये हमें दिखाता है, जो लिक्विड लिमिट हमें बताती है कि कितना स्वेलिंग पोटेंशियल है सॉइल का, स्वेलिंग श्रिंकेज के बारे में बताती है। और yes, sir. नहीं, plasticity index क्या बताता है? क्वेश्चन ये है सौरभ. What Yes, PI sir. is telling to us? Sorry sir. Okay, liquid state पे soil का shear strength कितना होता है? Sir, almost negligible, around sir, I don't know exact value, but it is almost zero, sir. Okay, fine. Saurav, how will you define the shear strength of soil? Sir, shear strength of the soil is the ability of soil to withstand the shear stress developed in the soil because of the
स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द सॉइल, यस, व्हेन वी अप्लाई द लोड ऑन द सॉइल। तो ये कैसे विथस्टैंड करता है शियर स्ट्रेस को। ओके, तो और सर आपने शियर स्ट्रेंथ अभी हमें ना। मिलता है, हम्म, शियर स्ट्रेंथ हम सॉइल के अंदर शियर स्ट्रेंथ तीन प्रॉपर्टीज से मिलता है। फर्स्ट इज हम्म, फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल, सेकेंड हम्म, सर इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल, और तीसरी चीज है सर इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल। okay. So I'm just framing cohesion with C, friction with phi. यस सर, Okay, that is angle of inclined friction. So अगर हमें ये C और phi को कैलकुलेट करना है, we have to determine the C and phi for a given soil sample. यस सर। कैसे निकालोगे सर? सर हम इसके लिए शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। और जैसे कि अगर हम ट्राइएक्सियल टेस्ट कर रहे हैं, तो ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम अगर कोई भी एक टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें उसका मोहर डायग्राम बनाएंगे, मोहर सर्कल और मोहर फेलियर एनवलप। तो सर जो हम मोहर फेलियर एनवलप हमें मिलेगा, उसका जो स्लोप होगा वो हमें सर फाई की वैल्यू देगा, और जो जितना वो वाई नहीं, एक्सिस जो को कट करता मोहर है। सौरभ, जो आप फेलियर एनवलप में, मोहर सर्कल में जो आपका फेलियर एनवलप बन रहा है, वो कहीं ना कहीं तो वाई वाई एक्सिस को कट करेगा। यस सर, वो सी की वैल्यू देगा सर हमें। तो सी वो कहाँ हमें से मिलेगा? क्वेश्चन तो यही है ना। सर जितना इंटरसेप्ट कर रहा है वो वाई को, उतना हम सी की वैल्यू कंसिडर करते हैं उसमें। हाउ यू आर गेटिंग कि ये लाइन ऐसे जाएगी ना? द क्वेश्चन इज दैट, ये तो कुछ सर ऊपर से वो भी जा हम, सकती है। यस सर, सर हम उसके लिए अलग अलग लोड पे मोहर सर्कल्स बना रहे हैं। तो सर सब हम्म, और जो मोहर टेंजेंट जो बनेगी सर, सारे मोहर सर्कल्स को हम जब एक लाइन से मिलाएंगे तो जो टेंजेंट बनती है, वो जो कॉमन टेंजेंट बनती है उन सबके बीच में, उसको हम मोहर फेलियर एनवलप बोलते हैं। और सर फिर वो कट करता है यहाँ पे। ये लो, जैसे मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस में ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और वाई वाई एक्सिस में मेरे पास ये शीयर स्ट्रेस यस सर, है, फाइन। सो यस आपको मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पड़ेगी? सर सबसे पहले मुझे चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों। दोनों, चलो मान लीजिए ये आपका सिग्मा 1 हो गया और सिग्मा 3 हो गया। यस नाउ सर, आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दिस वन, यस सर, सो डोंट माइंड द ड्राइंग। ओके, यस सर, just hold on, so let me try once more. This I am getting like this one. यस सर। So now let me know where you will draw tangent, at what location. नहीं सर, हम फिर से एक और बनाएंगे। हम्म, सर हम फिर से टेस्ट करेंगे सर, इस पे अगेन एक और टेस्ट करेंगे वो लोड सॉइल तो इंक्रीज आपका फेल करके। कर गया होगा ना, सर सिग्मा वो 1 सॉइल सिग्मा फेल 3 कर will गया। get। यस सर, हम नेक्स्ट सैंपल सैंपल लेंगे, उस पर ज्यादा लोड हम्म, लगाएंगे, और फिर से हम एक और मोहर सर्कल बनाएंगे, जिसमें हम्म, शियर स्ट्रेस भी ज्यादा डेवलप होगा और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी ज्यादा आएंगे। तो अगेन सर जिसमें अगर, यस सर, तो थोड़ा आगे बनेगा सर एक और, यस सर, थोड़ा सा आगे एक और मोहर सर्कल बनेगा। ओके, डन। Yes, sir. इसकी रेडियस थोड़ी सी ज्यादा होगी उससे। और सर हम इनके जो पॉइंट्स है उनको फिर मिलाएंगे सर आपस में। हाउ यू कम टू नो किसका क्योंकि रेडियस ज्यादा होगा? सर क्योंकि हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, और शेयर स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस के हेल्प से ही हम इसकी रेडियस निकालते हैं मोहर सौरभ, सर्कल की। ये सॉइल सैंपल है, यस सर, सिविल इंजीनियर की तरह सोचो। सौरभ, ये सॉइल सैंपल है, इसके ऊपर आपने टेस्ट परफॉर्म किया लैब में, और ये सॉइल फेल किया। पहले यस वाला सॉइल सैंपल फिल किया, यू ड्रॉ वन मोर सर्कल। नाउ यू आर सेइंग कि हम यस दूसरा सॉइल सैंपल लेंगे, उस पर और ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो उससे कम लोड पे फेल हो जाए। हाउ यस यू सर, हो कम? सकता है। यस सर, हो सकता है, तो हो सकता है सर, हम उसके लिए फिर कम लोड पे कोशिश करेंगे ना सर उसके लिए। ठीक है, वो भी हमने ये ड्रॉ कर दिया मोर सर्कल 2। नाउ व्हाट? सर अब हम फिर से सर हम फिर से जब सिग्मा फिर से हम जब करेंगे तो हम कन्फाइनिंग स्ट्रेस बढ़ाएंगे। जब जैसे ट्राइएक्सियल टेस्ट में दो स्टेप्स होते हैं, कन्फाइनिंग स्ट्रेस, एक डेविएशन स्ट्रेस। तो सर हम फिर से कन्फाइनिंग स्ट्रेस बढ़ाएंगे, और फिर से उसके बाद डेविएशन स्ट्रेस बढ़ाएंगे, तो सर हमें फिर से एक और मोहर सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो सर हम कुछ सैंपल्स ऐसे लेंगे और उसके बाद हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कभी परफॉर्म किए हो ट्राइएक्सियल टेस्ट सौरभ? नहीं सर, सिर्फ पढ़ा है सर इसके बारे में थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली पढ़ा है, तो टेस्ट तो कुछ और ही बोल रहे हैं अगर हम लैब में कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये हम मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं, यू आर राइट,
लेकिन अगर मुझे सी और फाई निकालना है, चलिए कोई बात नहीं, आगे। अच्छा, ये जो सी और फाई है, ये सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी या इंडेक्स प्रॉपर्टी? सर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है सर ये। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने स्टोन कॉलम का नाम सुना है सौरभ? स्टोन कॉलम सर? हम्म, नहीं सर। स्टोन कॉलम ये ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक के अंडर फॉल करता है। Okay, so I think right now we can provide feedback to you, Saurabh. Yes. So what I asked you, so you said कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल के ऊपर है, जिसमें आपने इंडेक्स प्रॉपर्टी निकाली है। Yes sir. फाइन, Yes sir. ठीक है। तो sieve एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक ऑन द कोड फॉर द sieve. दिस इज IS 460। इस कोड के अकॉर्डिंग सीव्स को डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है सर। दिस इज द कोड फॉर द सीव्स। सीव्स को डेजिग्नेट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो सौरभ आपके पास 4.75 mm IS सीव है ना, उसके बाजू में साइड में यहाँ पे लिखा होता सारा नोटेशन। तो बोलने मतलब ये जो यहाँ पे सीव है, इसमें ये जो स्क्वायर मैश बनाया ओपनिंग का, वो स्क्वायर मैश का साइज क्या है, वो 4.75 mm। यस सर। ठीक है, तो ये IS कोड होता है सीव कोड, जिससे डेजिग्नेट हम करते हैं। यस सर। ठीक है, और जो सबसे छोटी सीव हमारे पास है वो है 75 माइक्रोन की। 75 माइक्रोन से छोटी सीव हमारे पास नहीं है अभी तक, सबसे छोटी सीव यही है। ठीक है, अब जो आपने कोड बताया वो सॉइल क्लासिफिकेशन का कोड है। यस सर। वाटर कंटेंट आप ओवन ड्राइंग मेथड से निकाल रहे हो, दैट इज फाइन। तो जब टेम्परेचर आपका 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाएगा तो स्ट्रक्चरल वाटर हमारा यहाँ से इवेपोरेट होगा। यस सर। जिससे क्या होगा, हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, वो चेंज होगा, जो हम चाहते नहीं, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अफेक्ट होने वाली है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें और आपसे पूछेंगे कभी कि क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि हम सॉइल को 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाके हीट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर जो हमारे पास ब्रिक्स बनती हैं किलन के अंदर, भट्टी में या क्लैंप में, तो वहां पे जो ईंट होती है वो लगभग मेरा 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाके वो हीटअप होती है। और उसके बाद इनिशियली हम यहाँ पे क्ले ही लिए होते हैं, और क्ले एक तरह की सॉइल है, उसमें हमारे पास और भी यहाँ पे मिनरल्स मिले होते हैं, जैसे सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा, आयरन ऑक्साइड वगैरह होगा। तो वो रिक्वायरमेंट के बिहाफ के ऊपर है, लेकिन सर जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो बिल्कुल ही चेंज होता है। यस। ठीक है, और ब्रिक को तो आपने देखा होगा हम यूज करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर। नाउ आफ्टर दैट लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट या इवन PI। तो आप सबसे पहले ये रिपोर्ट करो कि सर जब भी मैं यहाँ पे एटरवर्क लिमिट निकाल रहा हूँ तो मेरा जो सॉइल होना चाहिए वो 425 माइक्रोन IS सीव से पास होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है। 425 माइक्रोन सीव से पास होगा, उसमें फाइन सैंड आएगा, ऑफ कोर्स सिल्ट उसके अंदर रहेगी, और उसके अंदर क्ले तो आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है, अच्छा मेरा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपसे सौरभ कि PI क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो आपको 2 सॉइल सैंपल दे दिए, एक सॉइल सैंपल में PI वैल्यू 40% है, दूसरे सॉइल सैंपल में PI वैल्यू 60% है। तो PI 60% बोलने का मतलब क्या है कि जो दूसरे वाला सॉइल सैंपल गिवन है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 60% आपको गिवन है, तो उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा है। क्ले कंटेंट, जो PI होता है सौरभ, वो हमेशा कंटेंट ऑफ क्ले को मोर स्पेसिफिकली डिनोट करेगा एज कंपेयर टू क्ले मिनरल्स। हमारे पास क्ले मिनरल भी होते हैं ना, मोंटमोरेलाइट, केओलिनाइट, हैलुसाइट। यस सर। क्ले मिनरल, क्योंकि क्ले मिनरल जो प्रेजेंट होंगे उनका भी अलग अलग बिहेवियर होता है। तो PI क्ले मिनरल के साथ डील ना करके वो क्ले कंटेंट के साथ डील करता है। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं भी हमें PI वैल्यू ज्यादा मिलती है तो हम बोलते हैं कि सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट हाई है, हम कभी भी क्ले मिनरल की बात नहीं कर रहे होते। यस सर। सेकंड, shear स्ट्रेंथ, जो C और फाई है सौरभ, ये कोई सॉइल की इंजीनियरिंग या इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं है, ये shear स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है। These are the shear strength parameters. ये किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, पहली चीज तो ये। C और फाई निकालने के लिए टेस्ट आपने बता दिया, ट्राइएक्सियल टेस्ट। तो आपने यहाँ पे क्या किया सौरभ, आपने यहाँ पे σ1 σ3 निकाल लिया, मेजर आपको कितना चाहिए, माइनर आपको कितना चाहिए। ओके, यू आर ड्राइंग द मोर सर्कल, दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ी होंगी, हैव यू हर्ड द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? नो सर, प्लास्टिक जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट वन। और इवन इन DST आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, जो हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है ये भी हम परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मेरा ये फॉर्मूला होता है कि टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा प्राइम tan फाई। तो ये जो आपका सिग्मा प्राइम होता है जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, और ये आप शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो,
डायरेक्ट शेयर टेस्ट के अंदर भी। तो मुझे अगर ये पता है, मुझे ये पता है सी मुझे निकालना है, 5 मुझे निकालना है, तो बच्चे 2 अननोन है, तो एक इक्वेशन हमें और चाहिए पड़ेगी, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सी और 5 निकल जाएगा। और जैसे मैंने सी और 5 निकाला यहाँ से, आई कैन यूज हियर डायरेक्टली। सेम विद द ट्राइएक्सियल आल्सो। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट में भी हमें क्या मिल रहा होता है, सी एंड 5 की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं। और जैसे हमें सी और 5 की वैल्यू मिल जाती है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग इट इन इक्वेशन, सो वी आर गेटिंग द shear strength of the soil. Yes, sir. Fine. Even we can perform the SPT test also. SPT टेस्ट से भी जो हमारे पास सॉइल सैंपल होता है, उसमें हम SPT नंबर निकालने के बाद उसी सॉइल सैंपल को हम क्या करते हैं, सी और 5 वैल्यू भी निकालते हैं। SPT नंबर तो हमें मिल ही रहा होता है डायरेक्टली। यस सर। ठीक है, तो देखो टेक्निकल में कोई इतना ज्यादा बड़ा फ्लॉ नहीं है। सर एक डाउट रही है सर, जो आपने बताया मोहर सर्कल से नहीं निकल रहा था सर, वो मैं वहां पे क्या गलती कर रहा था? ये आपको ना ड्रॉ करके बताना था, क्योंकि एक्चुअली कुछ चीजें आप मिस कर रहे थे। जैसे आप मोहर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यस सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज नॉट गेटिंग योर पॉइंट कंप्लीटली। यस सर। है ना, जैसे आप मोहर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ पे पहले मेंशन करो कि ये वाला मेरा जो स्ट्रेस है, मान लो सर ये कि मेरा सिग्मा 1 है, ये मेरा सिग्मा 3, विद एग्जांपल चलो, इसकी वैल्यू सर इतना है, इसका वैल्यू इतना है। अब ये जो सिग्मा 3 होगा, दिस इज व्हाट, सेल्फ प्रेशर। सेल्फ प्रेशर आपने जो अप्लाई किया, यस, जो कोड देगा, मान लो ये उतना ही, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये सिग्मा 1 बढ़ा रहे हो, आपने सिग्मा 1 बढ़ा दिया, मान लो कुछ ऐसा हो गया, सेम एग्जांपल। या मान लो आपने सिग्मा 3 को भी यहाँ पे इंक्रीज किया, सेम एग्जांपल, तो ये आगे बढ़ेगा। तो ये आपको ड्रॉ करके समझाना है फिर। यस सर। ठीक है सर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि क्या मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ सर? वो आपको बोलेंगे सौरभ। अच्छा ठीक है सर। यस, आपको पेपर पेन दिया जाएगा, मिलेगा, आप उस पर ड्रॉ, अभी भी जब भी आप कभी मॉक में बैठो तो पेपर पेन जरूर अपने पास रखो। यस सर। ठीक है, नाउ विशाल सर विल गिव यू फीडबैक। यस, ओवर टू यू विशाल सर। हाँ yes sir, thank you. So वैसे तो overall your presentation is fine, but it is good to explore some more information. I started because Mandsaur is a very historic city. Okay, village है मेरे ख्याल से, जो पास का एरिया है, तहसील और what? डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर। डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो ये तो वैसे भी मंदसौर का काफी फेमस एक वो बन जाता है। आपने जो बताया पशुपतिनाथ टेम्पल, इट इज अ वेरी हिस्टोरिक टेम्पल, मेरे ख्याल से बहुत पुराना टेम्पल है वो, 5th to 6th सेंचुरी का। तो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से करना है। एंड किस ईरा में बना वो, ओनली पशुपतिनाथ टेम्पल, दे कैन फर्दर गो इनटू मोर डिटेल किस ईरा में बना है। और आई थिंक देयर इज सम यूनिक थिंग अबाउट दैट शिवलिंगा, वो 8 फेस्ड शिवलिंगा है। वो चीजें उसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, और सम मोर थिंग्स क्लोज टू दैट रीजन मंदसौर। दूसरा फिर आपसे मैंने पूछा कि लुब्रिकेंट है, बिकॉज यू मेंशन अबाउट योर इंटरेस्ट इन दैट, सम ई कॉमर्स वेबसाइट रिलेटेड इश्यूज आई आस्क्ड यू, तो वो थोड़ा सा आपको रखना है। ठीक है, कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, इंडियन प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसा चल रहा है, क्या इश्यूज हैं और क्या उनके मेजर टारगेट्स हैं। बिकॉज HPCL जो एक जॉब प्रोफाइल रहता है, वो एक बहुत ही एक वाइब्रेंट प्रोफाइल रहता है, उसमें दे आर दे कैन असाइन यू इवन सम job related to quality, where you need to deal with the different agencies to market what you can say HPCL product. So you can work as a marketing officer. The post will be officer only, but they can assign you such kind of works also. So you need to show that kind of comfort and confidence in dealing with all those questions related to marketing, because e-commerce is a kind of what, it's a kind of marketing strategy, marketing technique. So how HPCL can penetrate in market further utilizing those kind of systems, so they can move into that direction also. तो थोड़ा सा आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं थे। आई थिंक यू नो थॉट अबाउट दैट, कि थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे वो पेनेट्रेट करते हैं और क्या उनके इश्यूज आते हैं, एंड व्हाई सम ऑफ द इंडियन एजेंसीज आर नॉट एबल टू राइज एट दैट लेवल, द लेवल एट विच वी कैन सी Amazon और फ्लिपकार्ट और अदर सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। दूसरा फिर मैंने आपसे पूछा था कि पेट्रोल HPCL के प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में इंटरव्यू आपका चलेगा, एंड इवन यू कैन प्लान मेजर पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू थ्रू दैट इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। ठीक है, अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव आप उसको बनाओगे ना कि सर आई एम फ्रॉम ए, व्हाट इज फेमस अबाउट मंदसौर, तो मंदसौर इज अ वेरी हिस्टोरिक सिटी सर। there is a Pashupatinath temple, 8 faced Shivalinga,
established in century 5th and 6th century, so like this, so that you can attract interviewer towards that area. तो अभी आपका आंसर तो फाइन था, okay, but it is only at the border, okay, so you need to highlight some more things so that interviewer will ask you more things related to that, okay. So I hope you are getting some idea. Abhi then I asked you about the lubricant. What is that? W means winter. Lubricant you mentioned very right. What kind of lubricant we use in bikes? 10W40, something like that you mentioned. So W stands for winter. You can see two numbers, 10W and 40. So when there is an ordinary 40 number, that actually shows the viscosity at a slightly higher temperature, maybe 99, something like that. The viscosity of the lubricating oil at high temperature. What is that 10W? 10W, because when you are measuring the viscosity, some standard reference temperature you need to fix. Yes, so sir. when we are placing W, it means we are measuring the viscosity at a very low temperature. It may be minus some standard reference temperature. You can check. Okay. So some number we have given to the lubricant when you are measuring the viscosity at low temperature. That number we described by what? 10W. Okay. Yes. And when we are measuring the viscosity at a normal temperature, standard normal temperature, that is ordinary 40. What the idea, Saurabh? Yes, sir. And as the number is going to increase, the viscosity is going to increase. Okay. So if you are having a fuel SAE 60, so 60 will have more viscosity as compared to 40. Fine. Then I asked you about the density. What is the role significance of density? Why it is there in the petrol pump? Density is nothing but mass current volume. So actually, what we purchase when we go to petrol pump or diesel, we purchase what we get. We get quantity in liter. We don't get quantity in mass kg. So if you are purchasing a fuel which is having high density, it means you are purchasing more mass. By paying same amount of rupees, you are getting more mass of the fuel, and that is required. Okay. So if you are getting more mass, obviously you will be able to generate more heat out of that. So power output will be more. Okay. So it's something like that. What the idea, Saurabh? What is the significance of density? So obviously, sir, we will go with the higher density fuel, which is available in the market. And that's why that is a quality parameter. That is one of the quality parameter of fuel. Other than cetane, octane, or other quality parameter, whether it is flash point, fire point, okay, or cloud point, pour point. There are so many quality parameters. So it is good to explore all those things. And one more, I discussed with you the density. What is the significance of that? And then last, I asked you about your short-term goal, long-term goal. I thought you have not prepared your answer related to that, but it is good to prepare because these are very basic questions. And interview most of the time they ask this kind of question: what actually you want to achieve in your life? What is your long-term goal? Why HPCL? What will be at what level you want to see yourself at after 5 years? Something like that. But I feel the answer will be very much similar for all those kind of questions. Yes, sir. Where you want to see yourself after 5 years, what is your long-term goal? Okay, what you want to achieve in your life, something like that. So prepare some good answer. Okay, although overall you are looking very sincere, okay, and the qualities you mentioned, that is also fine. Weakness, it is not right to mention it like a weakness. You can say, sir, I'm it is very difficult for me to say no to anyone, sir. That's why whenever even I'm busy, and someone if coming to me and sharing his problem, I try my hard, sir, to solve that particular issue. So sometimes I feel, sir, that create even some problem in completing my task on time. So something like that. तो थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंट होके बोलो. उस टाइम पे एक्सप्रेशन यू नीड टू शो वेरी पॉजिटिव. Although you are mentioning your weakness, but expression you need to give very positive. Because actually overall you also know and they also know that is not a weakness. Okay. Yes, sir. So but वहां पे अगर आप ऐसे weakness दिखाओगे, sir, I help person and I go to that I even help them and I affect my own work also. So that is an activity, so you need not to affect your work. And yes, it is good to help the persons, it is good to help the society, different peoples. Okay, so there are so many good things in you and there is a very good potential in you. Explore some more things about HPCL. I hope you got idea and work on all the feedbacks you got from Vikram sir and me. Okay, best of luck and good luck for your final. सर कुछ डाउट्स थे मेरे. हाँ, go ahead. सर जैसा कि आपने वो डेंसिटी वाला था ना, वो मुझे लगा था कि मुझे बोलना चाहिए, बट मुझे लगा कि अगर वो ये ना बोल दे कि आप फिर पेट्रोल पे डलवाते हो डीजल ही लो ना क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं, actually you mix that.
petrol engine is going to work on petrol only, na? You cannot run petrol engine on diesel. Yes, sir. But even if you are purchasing petrol, the density is going to vary between the HPCL petrol, IOCL petrol, and the Reliance petrol, or there may be other agency petrol. Are you getting? Yes, sir. But you cannot run a diesel car on petrol. Okay, so diesel is having, is a more dense fuel. The density of the diesel is higher, but the diesel is not a refined fuel. Okay, and when we are running diesel engine, we will get more mileage. The mileage which we can get with the diesel engine is higher. Diesel cars, they give us more mileage. You can run Yes, sir. a car 25 or even more than 30 kilometers, close to that. Passenger car, I'm talking about the passenger car, with 1 liter. But petrol vehicles, they are not going to give you mileage more than 15 to 18. That is our average mileage. So diesel engines are more efficient. Diesel engine mileage is good, mileage is higher, but diesel engine life is lesser. Diesel engine life is not that much high as compared to the petrol engine. Petrol engine, if you are purchasing a petrol engine, you will get a registration for 15 years. You can run your petrol car. But diesel, most of the time they're going to give you the certification RC for 10 years only. Are you getting? Yes, sir. And one more thing, actually drastically diesel engine performance decrease with time. So if you are having a 5-year, 6-year diesel car, that is going to pollute, the pollution will be much higher actually from that vehicle as compared to the 7 or 8-year petrol car, because diesel engine, they run at very high pressure, and due to very high pressure, the losses starts occurring in the engine. Okay. Yes, sir. So I hope you got the idea. So petrol engine, you cannot run on diesel. So there is no question of asking that, sir, why we purchase diesel? Obviously, you need to purchase diesel if you want to run diesel engine. Okay. Because there are some more technical detail I'm not sharing, because those are not related to you. Why actually we cannot fill petrol in diesel engine? And even they are not going to ask you, because you are not from chemical or mechanical engineering domain. You are from civil engineering domain. Yes, go ahead with your any other query, sir. सर मैंने पहले जो अपना इंट्रो बनाया था, इससे पहले मैंने एचआरएस ने दिए थे, तो मैंने उसमें मंसूर के बारे में बताया था, और तो बट उन्होंने कहा कि हम सौरभ को जानना चाहते हैं, तो सौरभ के बारे में ज्यादा बताओ, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? देखो, that may be different perspective. Even different person will have different perspective. Okay, it is, I'm not saying कि highlight everything about Mansoor in the initial only, in the introduction part only, sir, but little bit thing you have to highlight, and then you need to focus more on yourself only, because they are interested in you, obviously. Yes, sir. So it is good to highlight your quality, but some points you need to highlight so that you will be able to attract interviewer towards that. Because what we want actually as a candidate, as a interviewee, what we want we will get some question in a particular zone in which we are very much comfortable. Yes, so sir. What I discussed with you, Saurabh, it is good to plan your introduction. Okay, so highlight something so that they will ask you some question about Mansoor, and then prepare very good question answer related to that. Prepare some unique thing about your hobby, so that you will be able to attract towards them the hobbies which you mentioned. Those are unique actually, because most of the students, they are going to mention, sir, I like to play chess, football, and any other thing. Then they can skip that part. But if you're mentioning, sir, I'm very interested in exploring the e-commerce websites, sir, how they are how they penetrate into the market for selling their product. That is a word actually you need to use. Are you getting? So use that word, sir, exploring the e-commerce website is my hobby, sir, and I am very much interested to know how they sell their product. But if you mention about that, definitely they are going to ask you the question related to the marketing strategies which they follow, and how you can adopt them or link them with HPCL. So something like that. Got the idea, Saurabh? सर इंदौर के बारे में बता सकते, इंदौर पे भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोई डैम भी पड़ता है ना आपके वहां पे मंदसौर के आसपास, गांधी सागर डैम। तो गांधी सागर डैम में they can ask, because you are a civil engineer, they can ask you some question related, and it is a very famous dam, गांधी सागर डैम, उसके बारे में पढ़ लेना। सर मेरा गैप हुआ 3 इयर्स का, और बीच में सर मेरा एक नॉन टेक्निकल जॉब लगा था एसबीआई में, तो सर मुझे वो बताना चाहिए या नहीं? नहीं, if they are highlighting, because they are having your details ना. Yes, sir. So prepare some answer related to that, and be comfortable if they are asking that. Sir, but intro में नहीं बोलूं क्या?
No, introduction, that is not required. That is not required. But if they found something in somewhere in your resume or CV or your detail which you filled while filling the form of HPCL, then you need to have some answer and you need to show confidence at that moment, because entire interview you need to show the confidence, because finally if something happened in past, you need to accept that. Okay, you need to accept that, and very confidently you need to highlight, sir, even whatever is the situation, you need to handle, deal. Fine, Saurabh? Yes, sir. Okay, Saurabh, good luck, best of luck for your final interview. Thank you, sir. Okay.